Hi dear students, welcome at APS online classes. Dear students, it is your class of GK, class 7th GK. We have done chapter up to chapter 4. Chapter 4 was Union Territories. In this chapter, we have learned about Union Territories of India. So there are 9 Union Territories and 28 states in India. Two new UT of India is Jammu and Kashmir, and last one is Ladakh. In previous video of GK, we have learned when the last two UT Union Territories are formed. So dear student, it was formed on 5 August 2019. The government dissolved Article 370 of the Constitution of India, bifurcated this state into 2 union territories and notified that this UT shall now be a union territory with its own legislature, similar to how Puducherry and Delhi are administered. In the case of this UT, it will be a self-administered government with a legislature. Okay, and this UT Ladakh was carved out of the former state of Jammu and Kashmir on 5 August 2019. It is sparsely populated with a very difficult terrain. This UT will be without a legislature. Okay, so Ladakh is without a legislature, but Jammu and Kashmir with a legislature. Okay, with its own legislature, similar to Puducherry and Delhi. Okay, students. So what are the similarity between Jammu and Kashmir and Delhi about legislature? You have to find from the net. Okay, you can find it by searching on Google search. So dear students, next chapter is here, traditional art form of India. Traditional art form of India. In this chapter you will learn about some more art about art form of India. You have heard Madhubani painting, Mughal painting, miniature, Pattachitra, Varli and glass painting. So dear students, let's start. First figure. Open your book, chapter 5, page number 10. So you are observing here first figure. See in your book here, this. Okay, this painting is known as what? बार्ली पेंटिंग. अब इसके बारे में लोग पढ़ेंगे क्या है बार्ली पेंटिंग. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिश्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द 18th century. It is noted for its variety, clarity and use of rich colors. It was the influence of a Chinese artist. Dear students, Barley painting was influenced by the Chinese artist that made it very popular across the region. This style of painting revolves around the brightly colored glass of different patterns. Okay, colored glasses of different patterns. Okay students, so this painting's name is Varli painting. Okay, Varli painting कहाँ फेमस है? गुजरात में. This style of painting flourished in Gujarat during the 18th century. First क्या है? First Varli. ओके, इस टाइप की पेंटिंग कहाँ फेमस है? गुजरात में. ओके, गुजरात
गुजरात में कब से है फेमस? 18th सेंचुरी से। ओके, इसको फेमस करने वाले कौन थे? चाइनीज आर्टिस्ट। ओके, चाइनीज आर्टिस्ट। ओके, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड द ब्राइटली colors, glasses of different patterns. So dear students, you should download the Warli painting from the net. For more explanation, for more understand, you can go through the internet. Second one is here. सर सेकेंड वन इज हियर। देखो सभी लोग, सेकेंड फिगर में क्या बना हुआ, ये दिख रहा होगा सभी लोगों को, ये दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये है ग्लास पेंटिंग। ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है देखो इसमें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट्स बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। इट इज नेम्ड आफ्टर अ ट्राइब दैट लिव्स इन द माउंटेनस एज वेल एज द coastal areas of Maharashtra Gujarat border. Okay, it is named after a tribe that lives in the mountainous as well as the coastal area of Maharashtra Gujarat border. ठीक है, तो अब ग्लास पेंटिंग कहाँ फेमस है बेटा? ग्लास पेंटिंग कहाँ फेमस है? महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर। महाराष्ट्र एंड गुजरात बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड अबाउट दिस पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग। यू कैन डाउनलोड about these painting from the internet. So next one is here. थर्ड में देखो सभी लोग, it is a very famous painting. It is a style of Indian painting practiced in the Mithila region of Bihar. Mithila, where is Mithila? In Bihar region. Okay, so it is equally popular in some parts of Nepal. This painting is created with the fingers, strings, brushes, nib pens and matchsticks using natural dyes and pigments. Geometrical patterns are mostly used in this style of पेंटिंग। सो इस टाइप की पेंटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आजकल आपके आर्ट टीचर भी लास्ट क्लासेस में बताई होंगी मधुबनी पेंटिंग क्या है, आप लोग भी ड्रॉ किए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मधुबनी पेंटिंग इज वेरी फेमस इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। इट इज इक्वली पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ नेपाल। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मधुबनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट? ओके, तो आप क्या बताओगे? बिहार। अगर आपसे पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाता तो क्या बताओगे आप? मिथिला रीजन। मिथिला इज इन बिहार। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ और मेक सच टाइप ऑफ पेंटिंग। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल अबाउट मधुबनी पेंटिंग। ओके, इट इज दीज क्वेश्चंस चैप्टर 5 फर्स्ट Warli painting, glass painting and Madhubani painting are the homework for you. First one is here, Warli painting. Second one is here, glass painting, and third one is here, Madhubani painting. Now it is a question for you. Name two famous painters of India. So from where you can find? You can find from the net. Okay. So but I have two name of famous painters of India. First one is here, मकबूल फिदा हुसैन। इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लो। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन। And second one is here, Said Haider Raja. Okay, so these are the two names of famous painters of India. First one is here, Maqbool Fida Hussain, and the second one is here, Said Haider
Raja. Okay, there are so many famous Indian painters. You can find more name. Okay, but I have written here only 2 names. You can write more names after searching from the Google. Okay, fourth, it is a traditional painting of Odisha. The painting of this art form are especially inspired by the Jagannath temple of Puri. All of you heard about Jagannath temple of Puri. Someone have visited Jagannath temple. Okay, this painting is done on canvas, which is prepared using a mixture of chalk and gum with tamarind seeds. The color used in the painting are bright and vibrant. So इस ऐसे पेंटिंग को क्या बोलते हैं? पत्ता चित्र. Okay, पत्ता चित्र. पत्ता चित्र is associated to which state? Odisha. Okay, so पत्ता चित्र is a traditional painting of Odisha. The painting of this art form is specially inspired by the Jagannath temple. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्ता चित्र किस टेम्पल से एसोसिएटेड है, तो आप क्या बताओगे? जगन्नाथ टेम्पल से. जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है बेटा? जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल is in Odisha. Okay, is in Odisha. Okay, so इस टेम्पल से एसोसिएटेड कौन सी पेंटिंग है? पत्ता चित्र. ओके, सब लोग नोट करते रहोगे. नेक्स्ट, 5th नंबर पे है, दिस पेंटिंग रिफर टू वर्क ऑफ आर्ट executed in teeny size and great detail. These are mainly associated with the state of Rajasthan, where they are still in practice. These paintings reflect the lifestyle of Rajputana tradition. Okay, so students, this type of painting is reflect the lifestyle. Reflect means उनके बायोग्राफी, उनके लिविंग स्टाइल को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में. तो ये कौन सा हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिएचर. ओके, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये क्या हो जाएगा? मिनिएचर है. इस पेंटिंग का नाम मिनिएचर है. थर्ड लास्ट वन इज हियर, दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल. इट इमर्ज्ड, developed and spread during the period of the Mughal. Human, plants and animals are realistically depicted in the form of art. So this type of art is known as Mughal. Okay, Mughal painting में क्या बताया जाता है? यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल. इस मुगल पेंटिंग में हम लोग क्या बताते हैं? इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या बताते हैं? रियलिस्टिक वे में बताता है. ठीक है, इस पेंटिंग में. सो thus we have learned about some traditional art form of India. First one was here barley painting, second glass, then Madhubani, then Pattachitra, miniature and Mughal. And we have known about 2 famous painters of India. Name are here, Maqbul Fida Hussain and Syed Haider Raja. So students, you have to note down all about the barley painting, glass, Madhubani, Pattachitra, miniature and Mughal, and note a short essay on this topic, on this art form of India, traditional art. So next chapter is here, chapter 6, all about Punjab and Haryana. You all know some fact about Punjab and Haryana. You know Punjab and Haryana is 2 states of India. Punjab and Haryana are the 2 states located in North India. They share a common capital city, Chandigarh. आपको पहले भी पता होगा कि चंडीगढ़ is the share capital of Punjab and Haryana. Okay students, so there are more such interesting facts about 2 states. Let us learn more. Okay, आपसे पूछा जा सकता है कि what is the name of Punjab?
तो क्या बताओगे आप? चंडीगढ़। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? ये भी क्या है, इसका भी क्या होगा कैपिटल? चंडीगढ़ होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, इसी के नाम पे क्या पड़ा है? स्टेट का नाम पड़ा है पंजाब। पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, रिवर। ओके स्टूडेंट्स, the word Punjab is derived from Persian word panj, is that 5 and ab means water. So Punjab, आपसे पूछा जाए अगर पंजाब वर्ड कहां से आया तो क्या बताओगे आप? derived from Persian. It is derived from Persian word punch and ab means, and ab is that water. Okay students, so students, what is the meaning of Punjab? इसको क्या बोल रहे हैं? पंजाब को क्या बोल रहे हैं? द लैंड ऑफ 5, द लैंड ऑफ, पंजाब को क्या बोल रहे हैं? द लैंड ऑफ 5 rivers, the land of 5 rivers. अगर आपसे पूछा जाए what is the name of land of 5 years, इसको क्या बोलोगे आप? पंजाब. Okay students, so Punjab is the land of 5 rivers. Punjab word is derived from Persian word panj. Panj means what? Panj means is that what? 5. Panj means 5 and word ab means water. Okay, so dear students, Punjab is known as the land of 5 rivers. Okay, these denote the 5 rivers. These rivers are Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं तो आप क्या बताओगे? 5. कौन कौन सी बताओगे? ये भी मैं बोर्ड में लिख रहा हूं. ओके, चलो तो देखो यहां पे सभी लोग, these rivers are Satluj, Beas, Ravi, okay, Ravi, Chenab and Jhelum. And dear students, Jhelum. Okay, so these 5 rivers are in Punjab. So Punjab is known as land of 5 rivers. Okay, it is clearly visible. Next one is here. So you have to learn how many rivers flow in Punjab and name of them also. You should know Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. पंजाब कहां से मिला है? किस वर्ड से? पर्शियन वर्ड में पंज मीन्स what? 5 and ab means water. Okay students, so you can say that Punjab is the land of 5 rivers. Okay, there are so more fact. Greek referred to Punjab as Pentopotamia. Okay, मेसोपोटामिया, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है? क्या नाम दिया गया है? ग्रीक ने इसको पंजाब को क्या बोला है? पेंटापोटामिया. एन आइसलैंड डेल्टा ऑफ 5 कन्वर्जिंग रिवर्स. आइसलैंड डेल्टा ऑफ 5 कन्वर्जिंग रिवर्स. ओके, पेंटापोटामिया मीन्स, यहां पे नोट करते हुए क्वेश्चन में आएगा
पेंटापोटामिया मीन्स क्या हो गया? पेंटापोटामिया मीन्स हो गया बेटा आपका आइसलैंड डेल्टा ऑफ 5 कन्वर्जिंग रिवर। आइसलैंड डेल्टा of 5 converging rivers. Okay, converging river. ओके तो क्या हो जाएगा? पेंटापोटामिया किसको बोलते हैं? पंजाब को। कौन बोलता है? ग्रीक कहता है कि पंजाब को क्या कहता है? पेंटापोटामिया, जिसका मतलब होता है व्हाट? आइसलैंड डेल्टा ऑफ 5 कन्वर्जिंग रिवर्स। ओके, 5 कन्वर्जिंग रिवर्स। नेक्स्ट फैक्ट इज हियर, the holiest of Sikh Srine Harminder Sahib Golden Temple is in Amritsar, Punjab of the 5 Takht of Sikhism. 3 are in Punjab: Sri Akal Takht Sahib, Damdam Sahib and Anandpur Sahib. So dear students, Sikh Srine, holiest of Sikh Srine क्या है? हरमंदिर साहब, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन टेम्पल। सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल कहां पे है? अमृतसर में। अमृतसर इन पंजाब। ओके, इज इन पंजाब। ऑफ द 5 तख्त ऑफ सिखिज्म 3 आर इन पंजाब। 5 तख्त ऑफ सिखिज्म, जिसमें से 3 कहां पे है? पंजाब में है। कौन कौन सा है? श्री अकाल तख्त साहिब, दमदम साहिब एंड आनंदपुर साहिब। ओके, सो इन 5 तख्त ऑफ सिखिज्म कहां पे है? जिसमें से 3 कहां पे है? पंजाब में है। पंजाब में कौन कौन से? श्री अकाल तख्त साहिब, दमदम साहिब एंड थर्ड वन इज हियर आनंदपुर साहिब। ओके, और गोल्डन टेम्पल कहां पे है? गोल्डन टेम्पल इज इन बिहार। ओके स्टूडेंट्स, गोल्डन टेम्पल इज इन बिहार नहीं, गोल्डन टेम्पल इज इन पंजाब, अमृतसर। ओके, गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, इज इन अमृतसर, पंजाब। ओके, और इनके क्या है? उसमें है 5 तख्त ऑफ सिखिज्म, इन विच 3 आर इन पंजाब। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? वो 3 कहां पे हैं? उनका नाम क्या है? यहां पे नोट कर ले रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं, आप भी नोट करो सभी लोग। तो क्या हो जाएगा? 5 तख्त ऑफ सिखिज्म, 3 आर इन पंजाब, श्री अकाल फर्स्ट इसमें क्या है? श्री अकाल तख्त साहिब, सेकेंड वन इज हियर दमदम साहिब, थर्ड क्या है बेटा? आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। सो ये क्या है? 5 तख्त ऑफ सिखिज्म में से 3 कहां पे है? पंजाब में। ये सब कहां पे है? ये सब कहां पे? पंजाब में। अगर आपसे पूछा जाए श्री अकाल तख्त साहिब, दमदम साहिब एंड आनंदपुर साहिब कहां पे है? तो पंजाब में। क्या बताओगे आप? पंजाब में। ओके स्टूडेंट्स, और गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में है। अमृतसर भी पंजाब में है, तो गोल्डन टेम्पल कहाँ हो गया? पंजाब इन अमृतसर। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अमृतसर इन इंडिया attract
more tourists than visitors to the Taj Mahal. Okay, अमृतसर क्या है? अमृतसर in India attract more tourists than visitors to the Taj Mahal. पंजाब is called the granary of India. पंजाब को और क्या बोलते हैं हम लोग? Granary of India. पंजाब is known as granary of India. अगर आपसे पूछा जाए आपके granary of India क्या है तो आप क्या बताओगे? पंजाब. ठीक है, granary of इंडिया क्या हो जाएगा? पंजाब. ग्रैनरी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? पंजाब. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज हियर. पंजाब इज कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ इंडिया एंड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. पंजाब को और क्या बोलते हैं हम लोग? पंजाब को या हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब को और हम लोगों ने क्या बोला? फर्स्ट पहले हम लोग क्या बोले थे? लैंड्स ऑफ 5 रिवर्स. एंड और पंजाब हमने क्या बोला? ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट मोगा अमृतसर इज द लार्जेस्ट इन पंजाब विथ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 4,35,000 लीटर्स. ओके, सो अमृतसर में क्या है? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है. कहां पे है? मोगा में है. ठीक है, एट मोगा इन अमृतसर इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट which can produce 4,35,000 liters of milk. डेरा बसाई लुधियाना इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. डेरा बसाई को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो कि लुधियाना में है. बटाला नोन फॉर कास्ट आयरन एंड मैकेनिकल मशीनरी वॉज वंस कॉल्ड द आयरन बर्ड ऑफ इंडिया. बेटाला को और हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन बर्ड ऑफ इंडिया. यहाँ पे क्या बनता है? आयरन का कास्टिंग होता है. आयरन का क्या होता है? कास्टिंग होता है. ठीक है, बटाला में. ठीक है, बटाला को क्या बोलते हो बेटा? ये भी नोट करो. बटाला को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन बर्ड ऑफ इंडिया. आयरन बर्ड ऑफ इंडिया. एट बटाला iron casting is going on there. So Batala is known as iron bird of India. Mandi Gobindgarh of Fatehgarh Sahib district is called steel town as it has the largest number of steel rolling plant. अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजाब में किस डिस्ट्रिक्ट में स्टील प्लांटिंग होती है, स्टील टाउन है, स्टील रोलिंग प्लांट है, तो आप क्या बताओगे? मंडी गोविंदगढ़ ऑफ फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, मंडी गोविंदगढ़ में क्या होता है? स्टील रोलिंग प्लांट है, वहां पे स्टील से रिलेटेड वर्क होते हैं. ठीक है, तो क्या बताओगे आप? मंडी गोविंदगढ़ जो कि पंजाब में है. पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में है? फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, मंडी गोविंदगढ़ मंडी गोविंदगढ़ ऑफ फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ फतेहगढ़ साहिब districts is called steel town. Mandi Govindgarh of Fatehgarh Sahib district is called district of Punjab. लिखो. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब is called steel town. In this
In this Mandi Gobindgarh, steel rolling plants is working. Okay. Now, Kila Raipur Sports Stadium Sports Festival, popularly known as the Rural Olympics, is held annually near Ludhiana in Punjab. The highest number of car owners, ये important point है, ठीक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हमें भी लग रहा है. The highest number of car ownership per 1000 population is in Chandigarh with 82 cars per 1000 people. मीन्स वहां पे 1000 लोग हैं तो उसमें से 82 लोगों के पास कार है, ठीक है. बट अपने ऐसा नहीं है यूपी में. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्या है, यूनिक बात है ना, कुछ फैक्ट है ना पंजाब के बारे में. तो हम लोग क्या पढ़े अभी, पंजाब के बारे में पढ़े. पंजाब को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं. इसको पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है. पर्शियन वर्ड में पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन पंजाब देयर आर 5 रिवर्स, सतलज, बीस, राबी, चेनाब एंड झेलम. So Greek referred to Punjab as Pentapotamia. Pentapotamia means Iceland delta of 5 converging rivers. So 5 converging rivers कौन सी हैं बताओ, सतलज, बीस, राबी, झेलम एंड चेनाब. ओके ओके, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. हरमंदिर साहब क्या है, हरमंदिर साहब का नाम और क्या है, गोल्डन टेम्पल. उसको गोल्डन टेम्पल का पहले नाम क्या था, अभी भी लोग लेते हैं हरमंदिर साहब. ओके, इज इन अमृतसर पंजाब. ऑफ द 5 तख्त ऑफ सिखिज्म आर देयर इन पंजाब. ठीक है, सिख के कितने तख्त हैं, तख्त ऑफ सिखिज्म 5, जिसमें से 3 कहां पे है, पंजाब में ही है. उसके तीनों के नाम हमने लिखा था. फर्स्ट वन इज हियर श्री अकाल तख्त साहिब, दमदम साहिब, एंड थर्ड वन इज हियर आनंदपुर साहिब. सो इन दोज 5 तख्त ऑफ सिखिज्म 3 आर इन पंजाब. नाम भी बता दिया आपको. ओके, नेक्स्ट वन इज हियर अमृतसर. अमृतसर इन इंडिया अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट देन विजिटर्स टू द ताजमहल. Punjab is called the granary of India and it is known as the bread basket of India. Milk processing plant at Moga. Okay, अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर के किस जगह पे, किस प्लेस पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी क्या है, 4,35,000 लीटर. ओके, ये क्या होता है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां पे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है. डेरा बसाई को क्या बोलते हैं, डेरा बसाई लुधियाना में है, इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. सो लुधियाना भी कहां पे है, पंजाब में ही है. सो डियर स्टूडेंट, डेरा बसाई लुधियाना इज इन पंजाब, इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. Batala known for the cast iron mechanically machinery was once called the iron bird of India. Mandi Gobindgarh of Fatehgarh Sahib district is called the steel town as it has the largest number of steel rolling plant. So dear students, for today I am going to wind up my class. Tomorrow we will study about Haryana and some more fact about Haryana, जिसमें से बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे. तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सब लोग क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे. आज जितना भी हमने पढ़ा दिया उसको आप घर में रिवाइज करोगे, नोट डाउन करोगे अपने जीके नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.